सो स्टार्ट करते हैं इसको ना सुजीत. Sir, So you have written almost 5 questions based on different topics, like sir, infrastructure you have covered, electronic vehicles you have covered, then logistics you have covered, है ना? So sir, based on like I have given 5 questions to you, and then you have already completed these questions, and I think 4 to 5 questions you have written of quality subject, I think, है ना? sir, So firstly, we'll discuss this economics question, and then after economics, we'll start our quality wala questions. sir, Okay. So in the first question, let's start our discussion. So in the first question, there is an investment in infrastructure. Just okay. So investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth. Discuss in the light of India's experience. In 250 words, you have written the answer. Okay. So you have written first introduction under national infrastructure pipeline. Government plan to spend like 111 lakh crore for the infrastructure development between 2020 and 25. Okay, sir, so you have given mostly you have given the information, factual information you have already given. But if I'll start this information or always mention the source. Firstly, always mention the source because you have given national infrastructure pipeline, government plan to spend, है ना? Government plan कर रहा है, लेकिन किस चीज में mention है? So according to economic survey. ओके एक तो आपके पास sir. में ये पॉइंट है कि आप इकोनॉमिक सर्वे के रेफरेंस से इसका आंसर को फ्रेम कर सकते हो. देन सेकंड वन इज, अगर मैं एक बात करूं इंफ्रा की, because in the question they have given investment and infrastructure and investment. ओके Sir. अगर मैं क्वेश्चन में बात करूं इंफ्रा का, तो इंफ्रा कैसे एक्ट करता है? आपको कुछ आइडिया ऐसा आ रहा है इंफ्रा कैसे एक्ट करता है? थोड़ा मल्टीप्लायर इफेक्टिव करता है सर, या ड्राइविंग, अभी बोल रहे थे ड्राइवर ड्राइविंग ऑफ वाला. इकोनॉमी सर, सर ड्राइवर या ऑफ इकोनॉमी यस यस, this is a keyword. So you'll सर. write like if you'll give any information, you'll write this type of information in the introduction. अगर मैं इसको लिखता तो infra acts as a engine of economic growth, तो यहीं सर पर ही अगर इसको मेंशन करता मैं, तो engine of economic growth. मैंने पहले इंफ्रा को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, देन एंड लगा के मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि फाउंडेशन ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट. क्या किया मैंने? इंफ्रा एक्ट्स एज अ इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सर. फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर दी मैंने वहां पर, या इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर दी मैंने वहां पर. ठीक है. तो बेस्ड ऑफ लाइक इफ यू विल गिव दिस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, देन यू विल मेंशन फर्स्ट वन सोर्स मेंशन करना है. सेकंड वन, अगर आप कोई इसका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लाइक कोई कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हो, तो वो कीवर्ड्स भी जरूर मेंशन करना है. लाइक 1 और 2 वर्ड का कोई कीवर्ड्स होता है, उसको मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पर. ठीक है. सर. देन इन द सेकंड पार्ट, आपने यहाँ पर काफी डिसेंट पॉइंट लिखे हैं. मोस्ट प्रोबब्ली आपने यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हैं. Like in progress of the economic growth, you have written like inclusive investment leads to economic growth. It's very good. Also, you have mentioned World Bank report and then factual information you have also given. So it's very good point. ठीक है, ये decent point है आपका. Then improves market competition. Infrastructure investment reduces production cost. Okay, as per Niti Aayog, 10% reduction in logistic cost leads to increase in export in 5 to 8%. It's very good point. Then the third point you have given multiplier effect. Okay, so more expenditure on infrastructure development, increasing production and thus generate more employment. So you'll give the example. आपको यहाँ पर कोई एग्जाम्पल मेंशन करना है. ठीक है. अब उस एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? आपने ये पढ़ा है, जब हमने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर दी या प्रोडक्शन की बात कर दी, तो मैं क्या यहाँ पर NIP लिख सकता हूँ. ठीक है. NIP 2020 माइनस 2025. ओके. एंड देन अगर उसको मेरे को कुछ बताना है, तो आई विल गिव द एम. व्हाट इज दिस एम? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट सर. हाँ, टू क्रिएट ओवर approximately 2 crore jobs. This is a factual information. ठीक है.
इस टाइप का आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपना मेंशन करना है वहां, ठीक है। देन यहाँ पर आप जो सेकंड पार्ट अपना स्टार्ट करोगे उसमें अपना जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा उस टाइप का इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। इसके बाद में आपका जो रहेगा यहाँ पर इंक्रीज इन एफडीआई इनफ्लो, ओके, आपने उसको मेंशन कर दिया है। लेकिन आपने यहाँ पर जो इंक्रीज इन एफडीआई इनफ्लो मेंशन किया है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके, इट्स वेरी गुड। बट एफडीआई का लिंक कहाँ पर होता है, आपने उसका मेंशन किया होगा, लाइक कृष्णापट्टनम आपने डेटा नाम सुना मिक्स। होगा, हाँ, आंध्र सर प्रदेश का, या फिर दोलेरा आपने नाम सुना होगा गुजरात का। सो सर यू गिव द मेंशन लाइक ईज ऑफ डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर में मेंशन है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोलेरा लाइक गुजरात में, एंड देन एक मैंने बताया यहाँ पर कृष्णापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इस टाइप का इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में आपने यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, ये इसमें इंक्रीज आपने एफडीआई का 13% एफडीआई, ये अच्छा पॉइंट था। रिडक्शन इन द बॉटलनेक्स लाइक रॉ मटेरियल एंड फाइनल गुड सप्लाई आपने मेंशन किया है, ठीक है। ग्रोथ इन डिजिटल इकोनॉमी आपने मेंशन किया है थ्रू इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक जनरेटेड डिजिटल इंडिया, डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो, लाइक आपने वो सब मेंशन कर रखा है, इट्स वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आपने उसमें अच्छे से सब मेंशन कर रखा है, बट you'll ट्राई टू गिव सम मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉर द प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, सर ठीक है। अब उसमें क्या पॉइंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक अट्रैक्टिंग प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्टिंग प्राइवेट फॉरेन एंड इन्वेस्टमेंट, एक ये पॉइंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब उसमें आप एग्जांपल क्या दे सकते हो, जापान और इंडिया का एग्जांपल यहाँ दे सकते हो आप, ठीक है। डीएमआरसी आप शायद। हाँ, हाँ, जापान इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का यहाँ पर, ठीक है। सो जापान इंडिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर सर इसको भी अगर और भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो कर दो, वरना इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। या नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोल सकते हो उसको, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जापान इंडिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, या नेशनल एंड नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बोल सकते हैं यहाँ पर, इस टाइप के आप सर पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एक ये वाला, क्योंकि हम ट्रिपल बी की बात कर रहे हैं तो अट्रैक्टिंग प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन सर इफ आई गिव वन मोर वैल्यूएशन पॉइंट, देन फैसिलिटिंग अर्बन अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट सिटीज वाला एक यहाँ पर, ठीक है। फैसिलिटिंग अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट सिटीज, you'll give the example अमरुद, AMRUT 2.0, और उसमें एक एग्जांपल लिख दोगे इंदौर इज अ स्मार्ट सिटी। किसने दिया है ये इंदौर वाला, नीति आयोग ने, नीति है। ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल गिव, बिकॉज हम लोगों का जो क्वेश्चन था वो स्टार्टिंग में हमने जब क्वेश्चन देखा तो उस क्वेश्चन का जो मेन पर्पस था वो यही था कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर द मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो विल ट्राई टू गिव सम मिक्स मैच इंफॉर्मेशन उसको, सर ठीक है। देन इसके बाद एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ आपने मेंशन किया, फॉर दिस लाइक आपने यहाँ पर मेंशन किया, ये प्रोवाइड्स है ना, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट्स। हाँ, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर अनस्किल्ड लाइक भारतमाला, यू हैव मेंशन प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 14.2 करोड़, लाइक आपने मेंशन कर दिया उसको जॉब के लिए, ठीक है। ठीक है, अब देखो जब एसेंशियल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे, आपने एम्प्लॉयमेंट का किया, आपने पॉवर्टी का नाम मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में यू हैव गिवन रिड्यूस्ड इनकम इनक्वलिटी आपने मेंशन किया, यूएनडीपी का, क्रिएटिंग इनक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा जो क्वेश्चन ना वो इक्वलिटी इनइक्वलिटी और एम्प्लॉयमेंट पे ही रह गया। बट सर जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर आपका कहीं ना कहीं ट्रिपल पी का भी रोल आता है। सर तो मेरे पास में देयर आर मल्टीपल स्कीम्स, विल यूज दीज स्कीम्स इन आवर आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक पीएम गति शक्ति, ठीक है, वो सर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करूंगा ही, तो मैं पीएम गति शक्ति को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर जेएनपीटी पोर्ट का मेंशन कर सकता हूं मैं, क्योंकि वहां से क्या बना था हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, जेएनपीटी सर पे हमारा था विद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, ठीक है। ये एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देन फॉर द ट्रिपल पी हम लोग दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम ले सकते हैं यहाँ पर,
सर ठीक है, उसमें दिल्ली एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन की बात कर दो, है ना, या फिर यहीं पर ही ट्रिपल बी में सोलर पार्क्स इन राजस्थान। ठीक है, लेकिन अगर मैं पॉवर्टी रिडक्शन की बात करूंगा तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉवर्टी रिडक्शन को कैसे मैं उसको मेंशन कर सकता हूँ? सर ये कंपोनेंट देख के सर मैंने किया था कि इंक्लूसिव ग्रोथ का जो कंपोनेंट है ये सबका हाँ, ग्रोथ होना चाहिए, तो उसके लेकिन अकॉर्डिंग लेकिन किया था सर। हाँ, लेकिन क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर हम लोगों को उसने ऑलरेडी वहां पर मेंशन कर रखा है ना, फर्स्ट पार्ट में आप सर देखोगे तो उसने फर्स्ट पार्ट में ही यहाँ पर मेंशन कर दिया, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल। फिर डिस्कशन सर लाइट ऑफ इकोनॉमी इन इंडियाज एक्सपीरियंस, तो इंडिया का एक्सपीरियंस तो भाई ट्रिपल पी के प्राइवेटाइजेशन के रोल में रहेगा, या उसने जो इनिशिएट किया उसके रोल में रहेगा। जो हमारा पॉवर्टी आ गया वो तो हमारा सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स में आ गया। तो मेनली मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पर मतलब मेंशन नहीं करना चाहूंगा, इस पॉइंट को, इसको हम स्किप करेंगे इस सर पॉइंट को। ठीक है ना, उस टाइप के पॉइंट्स को हम लोग स्किप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देन इसके बाद में आपका जो पॉइंट रहेगा वो ऑलमोस्ट आपने मेंशन कर दिया उसको। ठीक है, रिड्यूस सम इनक्वलिटी एम्प्लॉयमेंट की आपने बात किया। ठीक है, यूएनडीपी का आपने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया यहाँ पर 205 टू 23। देन क्रिएटिंग इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी बाय गिविंग लेवल प्लेइंग फील्ड। ओके, फिर आपने सुगम्य भारत स्कीम का आपने मेंशन किया, इट्स वेरी गुड। एड्रेसिंग रीजनल इंबैलेंस की बात किया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अभी 2.0 भी आई थिंक आ गया है ये वाला, मोस्ट सर प्रोबेबली। ट्रू। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। देन अगर अब देखो, इक्वलिटी और एम्प्लॉयमेंट पे ही मुझे पूरा क्वेश्चन फिनिश नहीं करना है, विल गिव मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। तो सर यहाँ पर मैं इसको क्या अप्रोच और मेंशन कर सकता हूँ? कुछ अभी याद आ रहा है ऐसा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ ऐसा बताओ। ये जो सर अपने स्कीम सब बताइए, सब जेएनपीटी सोलर पार्क ये सब लिख सकते हैं। हाँ, जैसे एक यहाँ पर मैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकता हूँ, सर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव की बात कर सकता हूँ। उसमें क्या होगा हमारा, नेशनल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात, इनिशिएटिव की बात करेंगे जिसमें हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात कर सकते हैं 2023 के पार्ट की। सर ठीक है, ये लिख सकते हैं इसमें। और इसके अंदर अगर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना है तो भाई इसमें क्या था, हमारा 5 MMT हम लोग प्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, सर ये अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने का ये दे सकते हैं। देन इसके बाद में मैंने एक पॉइंट आपको पिछली बार बताया कि हम लोग उसमें अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे थे वहां पर। तो यहाँ पर सर भी हम लोग कुछ ऐसा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, वहां पर अर्बन रिन्यूअल की बात कर सकते हैं, जिसमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। अभी आपने सुना होगा एक जगह पे यूपी में ही रोपवे स्टार्ट हुआ, आई थिंक कहीं पर। सर ये यूपी काशी में ना, कहाँ बनारस हुआ? बनारस में हुआ है सर रोपवे। हाँ, रोपवे स्टार्ट हुआ ना, तो वो एक किसका काम है, अर्बन स्मार्ट वेज का काम है। तो आप सर उसका भी एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसको हम लोग अर्बन, इसमें सर एक रूरबन वाला भी कर सकते हैं, रूरबन में जो ये गांव और जो शहर है उसको कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, रूरबन टाइप। वो भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल ट्रेडिशन में हम वो भी कर रहे हैं, उसको मेंशन कर सकते हो। बट हम लोग थोड़ा सा वो वाले एग्जांपल्स मेंशन करते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, सर जो हमारे सामने है, उस टाइप रूरबन के जैसे स्कीम एग्जांपल्स। की बता रहे हैं सर, जो नहीं रूरल एरियाज को अर्बन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की, हाँ, तो ये एक कर तरह से सकते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ में आ सकता है सर। उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक पॉइंट अपना मेंशन कर सकते हैं। तो रिन्यूअल का आपने मेंशन किया यहाँ पर, अगर उसमें मैं एक एग्जांपल दूं रिन्यूअल में, तो आपने पर्वतमाला का नाम सुना भी होगा यहाँ पर, पर्वत नेशनल मेट्रो रेल का, सर पर्वतमाला नेशनल मेट्रो रेल, पर्वतमाला नेशनल मेट्रो रेल। ठीक है, ये 24 का इनिशिएटिव है, यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं हम लोग। देन आपने मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया, लेकिन आपने यहाँ पर उसको कोई एग्जांपल मेंशन नहीं किया। सर ठीक है, आप उसमें एग्जांपल जब मेंशन करोगे, डिजिटाइज्ड लैंड रिसोर्सेज की बात कर सकते हो, लैंड रिकॉर्ड्स की बात कर सकते हो, जिसमें हम स्वामित्व स्कीम की बात कर सकते हैं। सर ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटाइज्ड लैंड अपना इसकी बात, रिकॉर्ड्स की बात कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स, सॉरी, स्वा एक मिनट, स्वा मित्र। मित्वा, ये हम मेंशन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, एक हमारा यहाँ पर ये अगर मेंशन करना है तो मैं उसको क्लाइमेट रीसाइलेंस की बात कर सकता हूँ यहाँ पर, जिसमें हमारा नेशनल अडेप्टेशन फंड की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सर नेशनल अडेप्टेशन फंड की बात करेंगे। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं।
मुझे एक चीज आपकी इस पॉइंट में जो अच्छी लगी, वो क्या अच्छी लगी मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जो आपने सिंगल विंडो क्लियरेंस कल्चर ऑफ, क्योंकि ये लास्ट सर आपने आई बताया था थिंक लास्ट टाइम। इन द लास्ट सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद दिस सर फॉर्मूला। तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा कि आपने ये फॉर्मूले बनाने स्टार्ट कर दिए इस आंसर में। सर ठीक है, तो इट्स वेरी गुड कि इसमें हम लोग आपने फॉर्मूले यूज किए। Then in the last conclusion part, this is part is like also good international coordination, PM Sakti आपने mention कर रखा है. As per recommendation of Kelkar committee, need to all of the move from the build, neglect, rebuild to build back better infrastructure to turn infrastructure holy grail to inclusive rapid sustainable growth. It's very good. Always give the कभी भी हम sustainable goal का mention करेंगे तो goal number भी mention करो। इंफ्रास्ट्रक्चर 9 में आ जाएगा सर। हाँ 9 पे मेंशन कर दोगे, या फिर विकसित भारत टू एट 2024, ठीक है वो सर मेंशन कर सकते हो। सॉरी 2024 2047, 2047, ठीक है एक ये मेंशन कर सकते हैं। देन इसके अंदर आपको कुछ कीवर्ड्स भी मेंशन कर सकते हैं। अगर इन केस इफ आई टॉक अबाउट द समरी ऑफ द क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन की मैं समरी को कैसे मेंशन करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा एक उसका ओवरव्यू देता हूँ यहाँ पर कि उस क्वेश्चन की मैं समरी को कैसे मेंशन करूंगा। सबसे पहले अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इंट्रोडक्शन की बात किया तो मैंने आपको दो चीज बताई, लाइक इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे पहले मैंने सर आपको बताया, देन द फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाउंडेशन ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। सर इन द इंट्रोडक्शन यू हैव मेंशन देयर आर 2 पॉइंट्स, देन इसके बाद में यहाँ पर आप देयर आर 2 कमिटीज जो हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ऑलरेडी यू हैव गिवन वन कमेटी, केलकर कमेटी यू हैव ऑलरेडी गिवन, बट देयर सर इज अ वन वीके सरस्वत कमेटी, ठीक है सरस्वत की भी एक कमेटी थी, वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसमें क्या बात हुआ था, नीड फॉर इनोवेटिव, आई थिंक नीड फॉर इनोवेटिव फाइनेंसिंग की बात की गई थी वहां पर, ठीक है। तो एक पॉइंट अपना वो मेंशन कर सकते हो आप। दूसरा, इसमें अपने जो कीवर्ड्स होंगे वो आप ऑलरेडी यहाँ पर गिवन जो भी कीवर्ड्स होंगे उनको मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मोस्ट ऑफली अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ तो आपके पार्ट्स में 3 पार्ट होंगे आपके कीवर्ड्स के, जो कि आपने सर ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर सारे कीवर्ड्स, तो वो मेंशन कर सकते हो। बेसिकली जैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया, टोटल फैक्टर प्रोडक्शन हो गया ना, इस टाइप के पॉइंट्स, या फिर सर बस्टिंग डिजिटल डिवाइड हो गया ना, इस टाइप के पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो, या फिर ट्रिपल पी, NIP, गति शक्ति, ये कीवर्ड्स है। तो देर आर 10 to 15 कीवर्ड्स जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो डायरेक्टली, सर ठीक है। 2 स्कीम्स हो गया, ये हो गया। एंड अगर मैं किसी इंटरनेशनल प्रैक्टिस की बात करूं तो आप वो क्या मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, बताओ मुझे कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का बताओ, ये कुछ इसमें इंटरनेशनल सर प्रैक्टिस मेंशन कर सकते हैं हम लोग। अगर सर यहाँ पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बात कर रहे थे वहाँ नॉर्वे और का हम्म, एग्जांपल दे सकते हैं सर। यस हाँ तो इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल किसे दे सकते हैं, चाइना का दे सकते हैं यहाँ पर, चाइना के। ठीक है। चाइना मॉडल लाइक रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप लगाने के लिए। एंड देन सेकंड वन इज साउथ कोरिया का दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सर तो 2 तरह के मॉडल हम लोग यहाँ पर अपने यूज कर सकते हैं फॉर द इंटरनेशनल प्रैक्टिस, आप ही नोट डाउन कर लेना अपने आंसर में, ठीक है। सर तो एक डायग्राम आपने बनाया, एक डायग्राम और बना के दिखा दूं इसमें अभी, सर ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको मैं प्लस में यहाँ पर एक कर दूंगा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, कॉस्ट प्रोडक्शन का आ जाएगा, फिर एक कम्पिटिटिवनेस आ जाएगा, फिर इधर से रैपिड ग्रोथ और इसका आ जाएगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट बनाऊंगा वो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का बनाऊंगा, ठीक है। जिसमें आप किसका करोगे, कैपेक्स वगैरह की बात करोगे या फिर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की बात करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बनाओगे फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। सर उसके साथ में क्या होता है, अनेबलिंग पॉलिसी। अब अनेबलिंग पॉलिसी में क्या पॉइंट आएंगे आपके, PM गति शक्ति, ठीक है। देन इसके साथ में क्या है, दोनों से मिला के कॉस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। लाइक लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे हम लोग, लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे यहाँ पर, लॉजिस्टिक कॉस्ट की, ठीक है, सर कॉस्ट प्रोडक्शन में। देन इसके साथ में क्या होगा, इससे कंपेटिवनेस होगा यहाँ पर, प्लस में इंक्लूसिविटी, किस लिए, क्योंकि GVC की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट आएगा उसके अंदर आएगा आपका रैपिड इंक्लूसिव ग्रोथ, और साथ में हाइयर ग्रोथ की बात भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो इसमें अपना लोअर रीजनल डिस्पैरिटी आ जाएगा, या फिर आप सिर्फ इतना भी लिखोगे रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ तो भी ये चल जाएगा, लास्ट वाले पॉइंट में रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। जी तो एक तरह का ये डायग्राम आप बना सकते हैं इसके अंदर, सर बट ऑलरेडी यू हैव गिवन वेरी गुड डायग्राम, तो आप इस डायग्राम को भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। सर
अभी पता लगा इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा डेप्थ में एनालिसिस किया इसका, तो आपको थोड़ा सा सर आइडिया लगा कि हम लोग कितना अभी इम्प्रूव कर सकते हैं। सर बढ़िया। तो अभी एक सेकंड क्वेश्चन आपका देख लेते हैं इसमें हम लोग, और मोस्ट प्रोबेबली दूसरा देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं अभी हम लोग। तो इन द सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने जो यहाँ पर कवर किया है, ओके, इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है, तो इन द इंटरनेशनल ट्रेड में आपने लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, और इस क्वेश्चन को जब मैं बना रहा था तो मुझे लगा कि कुछ नया क्वेश्चन और बच्चों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा इसको क्या है, हम लोग इसमें अच्छी चीजें लिख सकते हैं उस टाइप से। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर हम लोग अच्छे ढंग से इसको कवर करेंगे तो पेपर में इसके बनने के चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल सर ट्रेड इज सेंट्रल ऑन द डोमिनेंट करेंसी प्रीडिम, डीसीएम आपने मेंशन किया, डोमिनेंट करेंसी प्रीडिम critically analyze the importance of the hard currency की बात की है in international trade and discuss the potential of rupee acceptance in global trade as an alternative to dollar inflation। ठीक है, तो आपने जो स्टार्ट किया इट्स वेरी गुड, आपने उसको अच्छे से स्टार्ट किया। डोमिनेंट करेंसी का आपने एक्सप्लेन किया, स्टेट्स दैट अ फ्यू करेंसी प्राइमरी अदर यूएस डॉलर आर यूज्ड फॉर अ मोस्ट इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ओनली यूएस डॉलर नहीं आएगा एक तो, और जब आप फ्यू करेंसीज की बात करोगे तो फ्यू हार्ड करेंसीज जरूर मेंशन करना, बिकॉज ऑलरेडी इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन हार्ड करेंसी। सर ठीक है, देन जब आपने यूएस डॉलर की बात की है तो यहाँ पर यूरो भी आएगा, यहाँ पर येन भी आएगा। सर ठीक है, अगर इन केस आपको इतना इंफॉर्मेशन यहाँ पर सपोज आपको इफ यू वांट टू लाइक गिव योर यूनिक आंसर, तो मैं इसको कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। आपने यहाँ पर आईएमएफ का पढ़ा होगा, आईएमएफ ने क्या बोला है रुपये के बारे में कि 74% जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है वो किस में हो रहा है, यूएसडी में हो रहा है। 70 कितना था, 74% 4%। जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है यहाँ पर, वो कहाँ पर हो रहा है, यूएसडी में हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का सर इंफॉर्मेशन आप जब लिखेंगे तो वो सबसे फिजिबल रहेगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है तो सर। 74% ऑफ ट्रेड इज इम्पोज्ड इन यूएसडी, ये चलेगा यहाँ पर। देन आपने वहां पर डोमिनेंट करेंसी पेरिज्म को आपने मेंशन किया है, आपने सबसे पहले 50% उसका इंटरनेशनल पेमेंट आपने बता दिया, डॉलर इन्फ्लेशन बता दिया, वेयर ट्रेड शॉक्स एक्सचेंज। ठीक है, यूरो अकाउंट्स का आपने मेंशन कर दिया, इट्स वेरी गुड। ठीक है, आपने वो मेंशन कर दिया, लेकिन एक बार ये क्रॉस चेक कर लेना कि यहाँ पर जो आपने ये 50% लिखा है, ये आपने इंटरनेशनल पेमेंट वाला लिखा है या फिर फॉरेक्स, ग्लोबल फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस लिखे हैं आपने। इंटरनेशनल पेमेंट लिखा था सर, अब लेकिन आप यहाँ पे आई में बता रहे हैं तो इसको से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। हाँ, इसको आप वेरीफाई करना, एंड देन यहाँ पर फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस की बात कर सकते हैं हम लोग। सर ठीक है, फॉरेन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन यूएसडी। ठीक है, वो एक मेंशन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये किसने दिया है, BIS 2022, उन्होंने डाटा मेंशन किया था यहाँ पर। ठीक है, सर इसके बाद में आपने यूरो अकाउंट्स का मेंशन किया 20% वाला, एक ठीक है अपना पॉइंट। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट मैं इसमें थोड़ा सा और एड ऑन करा पाऊंगा, तो मैं वो देखता हूँ कि डोमिनेंट करेंसी पेरिज्म आपने मेंशन किया है, लेकिन व्हाई इट एग्जिस्ट, भाई कुछ तो रीजन होगा ना इसका। सर तो बताओ मेरे को, दो रीजन बताओ कोई भी। एक तो सर इनका करेंसी काफी स्टेबल है सर, स्टेबिलिटी एक रीजन है। बढ़िया बढ़िया, स्टेबिलिटी, और बढ़िया बात। जो इनका शेयर है सर ग्लोबल ट्रेड में वो ज्यादा है, इसके लिए भी सर एक तो ठीक रीजन है, तो यही है। मतलब नेटवर्क एफर्ट्स की बात कर सकते हैं, नेटवर्क सर एफर्ट्स फाइनेंशियल डिपेंड डेप्थ में है इनका। सर ठीक है, वेरी गुड भाई। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ द हार्ड करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रेड आपने मेंशन किया है, यू हैव ऑलरेडी गिवन स्टेबिलिटी इंटरेस्ट। ठीक है, बैक बाय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज। अब देखो, स्टेबल इंस्टीट्यूशन रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन रिस्क आपने, देखो अब यहाँ पर ना ये वाले मैं एग्जांपल्स में यूज नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव गिवन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो सर विल ट्राई टू गिव दीज इंफॉर्मेशन इन द एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में। जो ये मैंने लिखा है विल गिव दिस इंफॉर्मेशन इन द एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में। बट सर फॉर द एग्जाम्पल, जब मैं उसके एग्जाम्पल के लिए आऊंगा, और कभी भी जब इसको यूज करोगे तो आप हार्ड करेंसी में इसको यूज करोगे। ठीक है, कि ये हार्ड करेंसी में यूज होता है, आप इसको बार बार में जब यूज करोगे हार्ड करेंसी में यूज करोगे। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा तो वो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं भाई, क्रूड ऑयल एंड LNG कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकते हैं सर एग्जाम्पल में। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल है जो मेरे को इसमें एग्जाम्पल फॉर्मेट में यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, ठीक है सर।
देन इसके बाद लिक्विडिटी आपने लिखा है, ठीक है, अच्छा है भाई, हाई आपने ईज ऑफ कन्वर्टेबिलिटी लिख दिया, उसको मेंशन किया है। देन आपने उसको फिर रिजर्व फंक्शन के बारे में मेंशन किया है, सेंट्रल बैंक्स होल्ड एज रिजर्व्स इंडिया फॉरेक्स 640 बिलियन इन द ईयर 2024 इकोनॉमिक सर्वे 2024। बढ़िया एग्जांपल है ये, ठीक है। अब फिर से मैं एक एग्जांपल यहाँ पर रिजर्व की जब बात कर रहा हूँ, तो वही फिर से 58% ऑफ ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है, ये किसने, आर इन डॉलर्स। अगेन किसने दिया, आईएमएफ, जी। आईएमएफ 2024, इसने ये इंफॉर्मेशन दिया है, आईएमएफ 2024। इस टाइप का इंफॉर्मेशन आपको मेंशन करना है, सर ठीक है। देन आपने इसमें फिर नेटवर्क इफेक्ट का वो मेंशन किया हमने, वो आपने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया। एक मैं इसमें एक पॉइंट और मेंशन करना चाहूंगा, पॉइंट अगर आप लिखना चाहोगे तो, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की बात करेंगे, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। उसमें क्या होगा, कोई एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा हो कुछ ऐसा, इंटरनेशनल बॉन्ड के थ्रू आपने इंटरनेशनल बॉन्ड अपने स्विफ्ट, मसाला मसाला बॉन्ड मसाला हो गया सर। मसाला बॉन्ड भी ठीक है, इंटरनेशनल बॉन्ड स्विफ्ट ट्रांसफर्स की बात कर सकते हैं, स्विफ्ट ट्रांसफर्स सर मार्केट की बात कर सकते स्विफ्ट हैं, के बाद स्विफ्ट ट्रांसफर्स मार्केट, ठीक है। एक्चुअली मैं ये जो पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ ना, इनके सबके हमारे पास में वो है, क्या बोलते हैं, लाइक कीवर्ड्स हम लोगों को पता होने चाहिए वाले, ठीक है, इस सर। टाइप के। देन डाउन साइड ऑफ डोमिनेंट आपने मेंशन किया है, डॉलर इंफ्लेशन आपने मेंशन कर दिया, इंक्रीजम, नेशनल डिपेंडेंसी ऑन द यूएस इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, फिर एक्सपोज नेशन में यूएस मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी मेंशन, फील इंटरेस्ट वाला आपने मेंशन किया वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, फिर पॉलिसी अनसर्टेनिटी का मेंशन किया, ट्रम्प टैरिफ वॉर, ठीक है, इसका तो अभी काफी ज्यादा ही चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म का आपने मेंशन किया, 100% टैरिफ ऑन इंडिया, ठीक है, ठीक है, उसमें उसका ही लॉस है, हमारा तो क्या ही लॉस है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा अगर और अच्छे से लिख पाऊँ, डॉलर इन्फ्लेशन को, तो यहाँ पर मैं लिमिटेड कन्वर्टिबिलिटी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है ना, इक्वल कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हैं। देन एक्सपोज नेशन ऑफ आपने मेंशन किया है, इसका एक्सपोज नेशन वाले पूरा पार्ट, तो यहाँ पर हम लोग अपना जो आपने मेंशन किया इसका ट्रम्प टैरिफ वॉर का, तो इसको हम सर लोग ट्रम्प का नाम ना देके यहाँ पर आप ट्रेड टैरिफिक वॉर ही करना है। ट्रेड वॉर सर। हाँ, ट्रेड टैरिफिक वॉर, या इस या एक पॉइंट बना दो, ट्रेड डेफिसिट कंसर्न, उसके अंदर पॉइंट मेंशन कर सकते हो, या लिख दो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट कंसर्न्स, तब एक पॉइंट बन सकता है हमारा, ठीक है। सर तो इस टाइप के पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करना था। देन आपने पोटेंशियल रुपी एक्सेप्टेंस की बात की है यहाँ पर इंडिया की, चलो ठीक है, ये इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट की आपने बात कर दी है यहाँ पर, ठीक है। एक बार यार ये चेक करना फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, क्योंकि मेरे को जहां तक आइडिया लग रहा है कि फिफ्थ से था ये, सर, फोर्थ पे आ गया। हाँ, ये पहले फिफ्थ था, अभी फोर्थ पे आ गए हैं, तो अगर इसका ईयर मेंशन कर सकते हो तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो सर पहले फिफ्थ था, अभी हम लोग फोर्थ पे आ गए, तो हम लोगों ने दो जगह पे, मतलब एग्जाम कैसे काउंट करेगा उसको, तो वो एक चीज हम लोगों को देखना है इसमें, ठीक है। सर यहाँ पर फिर आपने ये वाला पॉइंट अच्छा था, फिर रिड्यूस्ड फॉरेक्स प्रेशर की बात किया ड्यू टू श्रिंकिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, अपने फिर आपने कैड वाला मेंशन कर दिया, 1.2% ऑफ जीडीपी पर इकोनॉमिक सर्वे, बढ़िया। इंक्रीजिंग शेयर ऑफ इंडिया ग्लोबल ट्रेड की बात किया, 3.3% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, इट्स वेरी गुड। इकोनॉमिक सर्वे का बात किया है, रेगुलेटरी चेंज बाय आरबीआई आपने ऑल्सो मेंशन किया है, रेजिडेंट आउटसाइड रेजिडेंट्स की बात किया, इट्स वेरी गुड, ठीक है। फिर बायलैटरल स्वैप की बात कर दिया, बोस्टर अकाउंट ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है। देन जब इंडिया पार्ट ऑफ ब्रिक्स करेंसी एग्रीमेंट एट द 16 का मेंशन किया है, सो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं एलोबरेट करूंगा किसके साथ में, रिसेंट डेवलपमेंट्स के साथ में। सो इन द रिसेंट डेवलपमेंट्स आपने सुना होगा कि इंडिया, सॉरी, इंडिया एंड यूए का आपने सुना होगा यहाँ पर, सर इंडिया यूए करेंसी स्वैप्स। है ना। सर इंडिया यूए का आपने सुना होगा, उसमें क्या मेंशन किया उसने इंडिया यूए एग्रीमेंट में, उसने ये तो मेंशन किया है कि भाई जो भी हमारे अभी मतलब वहां पर हमारे एटीएम भी ओपन हो गए हैं आई थिंक, ठीक है। सर और ऑलमोस्ट उन्होंने क्या इसमें एग्जांपल दिया है, लाइक उसमें जो हमारा रुपये और धर्म का वो है, तो शायद उसमें कुछ उनकी डील हुई है, सर तो एक ऐप एग्जांपल इंडिया और यूए का यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जिसमें आप यूपीआई पेमेंट का मेंशन कर दो, वहां पर हमारा ऑनलाइन पेमेंट वहां पर चल सकता है, यूपीआई पेमेंट आप मेंशन कर सकते हो,
ठीक है। सेकंड, वहां पर आप इंडिया यूए के बाद में इंडिया रशिया की बात कर सकते हो। ठीक है। मतलब हमारा 40 बिलियन का वो हुआ था वहां पर, 40 बिलियन का ट्रेड हुआ था अभी रशिया के साथ में। सर 40 बिलियन का ट्रेड ट्रेड। हुआ हमारा रशिया के साथ में, जिसमें से हमने 20% जो सेटलमेंट किया है वो रुपी में किया है। ठीक है। सर 20% जो सेटल हुआ है वो आईएनआर अपना इंडियन करेंसी में हुआ है। तो इस टाइप के आप एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अपना। देन इन केस इफ यू वांट टू गिव सम इंफॉर्मेशन, इसमें भी कुछ अगर और पॉइंट्स मेंशन करना चाहते हो तो 2 पॉइंट मेरे पास में यहाँ पर है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा पॉलिसी मेजर्स का। ठीक है। ऑलरेडी जो आपने पॉइंट मेंशन कर रखा है पॉलिसी मेजर्स में, जैसे आरबीआई का आप मेंशन कर सकते हो। आपने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है यहाँ पर, आई थिंक मैंने सर पढ़ा है अभी। आरबीआई वाला किया, हाँ। रेगुलेटरी चेंज बाजार में। हाँ, आपने वोस्टर वाला एक पॉइंट मेंशन किया है यहाँ पर। सर हाँ, वो एक पॉइंट आपका रहेगा, अच्छा पॉइंट है वो। ठीक है। इसके बाद में आप इसका एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। वो क्या कर सकते हो कि भाई जो हमारा फ्रॉम रशिया और श्रीलंका के साथ में और मॉरिशस और बांग्लादेश के साथ में हमारा स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स की हमारी जो चीज हुई है, वो हम एक मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर पॉलिसी मेजर्स में। या फिर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की बात भी कर सकते हैं हम इसमें, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की बात भी कर सकते हैं, जिसमें गिफ्ट सिटी का आपने सुना भी होगा, सर गुजरात की सिटी। है ना। तो अपना लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की बात कर लेंगे यहाँ पर एक बार हम लोग, जिसमें अपना गिफ्ट सिटी की बात करेंगे। ठीक है। देन यू हैव गिवन द चैलेंजेस, एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, इसमें आपने टेरिफिक डिलेमा की बात किया है यहाँ पर, फिर आपने पार्शियल इन कैपिटल अकाउंट की बात किया, रिस्क इन एक्सटेंस ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट की बात किया। ठीक है। लेकिन जब कभी भी आप लास्ट में चैलेंज मेंशन करोगे, सो यू गिव इंफॉर्मेशन समथिंग, यू विल गिव द पॉइंट ऑफ वे फॉरवर्ड। सर यू विल ब्रेक डाउन with a tabular format. This format you'll use at the last of this question. One side you'll give the challenges and one side you'll give way forward. तो आपने चैलेंजेस ऑलरेडी मेंशन करके हैं, कीवर्ड्स। देन यहाँ पर क्या लिखोगे, स्ट्रेंथनिंग रीजनल करेंसी, वो मेंशन कर दो एक पॉइंट, जिसमें शार्क और बायोन्स्टेक का नाम दे दो। ठीक है। अपनी अपनी करेंसी को हम लोग मजबूत करेंगे। देन डिजिटल एंड फिनटेक की बात कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। सेकंड पॉइंट में डिजिटल एंड फिनटेक की बात करेंगे। देन इसके बाद में यहाँ पर डिजिटल एंड फिनटेक की बात किया, फिर यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मसाला बॉन्ड्स की बात कर सकते हैं। ठीक है। सर इस टाइप के पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन करोगे इन द वे फॉरवर्ड, एंड देन साइड में आपका चैलेंज चलता रहेगा। ठीक है। ठीक है। इसके बाद आपने ब्रिक्स एग्रीमेंट ऑफ, अगेन दिस इज अ रिपीटेड पॉइंट, ऑलरेडी यू हैव मेंशन इन योर पॉइंट, जो आपने मेंशन किया है, सो इस पॉइंट को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। आरबीआई स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, ये सब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपया, राइट स्टेप्स इन डायरेक्शन। अब थोड़ा सा बेसिक वाला कंक्लूजन आ गया ये। सर So we'll try to give some informative, some futuristic approach conclusion, or on a positive note. We'll conclude our answer in a positive note. तो यहाँ पर मेरे पास में एक लाइक डॉलर, आपने ही पढ़ा भी होगा, इम्पलिज्म टू मोर बैलेंस्ड मल्टी पोलर करेंसी ऑर्डर। ठीक है। ये लाइन का यूज करना, इसको इन्वर्टेड कोमा में डाल देना, डॉलर इम्पलिज्म टू मोर बैलेंस्ड मल्टीपोलर करेंसी ऑर्डर। करेंसी में। ठीक है। ये आया कुछ आपको समझ सर में भाई? ठीक है। तो थोड़ा सा अब इसका एक देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बना सकते हैं, डायग्राम वायग्राम हम लोग इसमें भी बनाएंगे कुछ ना कुछ तो। ठीक है। मेरे पास इसमें बेसिकली 2 से 3 डायग्राम है, तो मैं रुपी के लिए बना सकता हूँ, मैं यूएसडी डॉलर का ही बना सकता हूँ, और मैं एक कॉमन बना सकता हूँ। तो मैं सर वन बाय वन थोड़े से आपको एक दो दिखा देता हूँ पहले। ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ पहले। चलो पहले डॉलर का बनाते हैं। एक पार्ट, फिर ग्लोबल पे जाएगा, फिर यूएस सेंशन पे जाएगा, फिर कैपिटल आउटफ्लो पे जाएगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो यूएसडी आएगा यहाँ पर। ठीक है। यूएसडी सबसे पहला पॉइंट। ठीक है। इसके बाद में सर यूएसडी में क्या है, ये प्राइमरी करेंसी मान के चल रहा हूं मैं इसको। ठीक है। देन ये क्या करेगा, ग्लोबल रिजर्व करेगा।
रिजर्व में क्या करेगा? यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, ठीक है। सर ये क्या करेगा? यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, फिर क्या करेगा? यूएस अपने सैंक्शंस लगाएगा, यूएस सैंक्शंस पावर, जिसमें वो क्या करेगा? स्विफ्ट ट्रांजेक्शन्स की बात करेगा। पढ़ा ना हमने स्विफ्ट अभी? सर स्विफ्ट ट्रांजेक्शन्स की बात करेगा वो यहाँ पर, जिससे क्या होगा? कैपिटल आउटफ्लोज, कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस। क्या हम लिख सकते हैं इसको? सर ठीक है, एक डायग्राम ये हो गया। ये बेसिकली ये हो गया डॉलर इम्प्रिज्म के लिए ये डायग्राम जो बनेगा, ठीक है। अगर इसी का मैं ये पीछे वाले बना देता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ। अगर मैं बनाऊं इसका रुपी का बनाता हूँ, एक मिनट कहाँ गया, रुपी इंटरनेशनलाइजेशन का बनाता हूँ, ठीक है। वो कैसे बनेगा? चलो इसमें भी हम लोग दो मिला के तीसरा बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होगा? फ्रॉम, हमारा क्या है इनिशिएटिव? लोकल टू ग्लोबल। ग्लोबल, ठीक है। अब देखो कहां पर कहां कनेक्ट होगा रुपी वाला, ठीक है। फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, प्लस में फ्रॉम फॉरेन टू फॉरेन एसेट टू मसाला बॉन्ड। कहां पर गया ये भाई? बिल्डिंग इकोनॉमिक, बिल्डिंग इकोनॉमिक, बिल्डिंग इकोनॉमिक करेंसी डिप्लोमेसी लिख सकते हैं इसको, बिल्डिंग इकोनॉमिक वाया करेंसी डिप्लोमेसी, ठीक है। सर बिल्डिंग इकोनॉमिक अलायंसेस वाया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, अलायंसेस और मेंशन कर दो उसमें, बिल्डिंग इकोनॉमिक अलायंसेस वर्सेस इकोनॉमिक करेंसी डिप्लोमेसी, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। लग रहा है अभी कुछ वैलिडेशन हो सर सर पाएगा हमारे आंसर्स में? सर सर हाँ, अच्छा है पॉइंट सर ये। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा फटाफट उसको भी देखते हैं। So in the third question, you have already given the logistics sector is one of the important component of the growth of the manufacturing industry. Discuss also mention various components of the recently announced National Logistic Policy 22. It's a 15 marker question or 10 marker question? In 150 10 words, मार्क you का will सर। write 10 marker question. Okay. So first one you have given. Firstly, you have given logistics sector in India contributes 14% of the GDP and employing over 22 million people with the projection of the 1 crore job in 2027 by the National Logistic Policy. ठीक है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन एक तो जो 14% है ना, इसको हम 13 to 14% जीडीपी करेंगे, बिकॉज इसके अप्रोक्स में ही है यहाँ पर, नियरली इसके 13 to 14% में, सर ठीक है। एक तो ये मेंशन करना है। दूसरा, आपने 1 करोड़ जो मेंशन किया, ठीक है, आपने उसको प्रॉपर मेंशन कर दिया, लेकिन मेंशन द सोर्स। जैसे मैं यहाँ पर नीति आयोग का मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है, नीति आयोग 2023 का मेंशन कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, लिख सकते हैं इसको, नीति आयोग को, सर ठीक है। क्योंकि जो कंपैरिजन होता है, जो डेवलप्ड इकोनॉमिक्स होती है 8 to 9% होता है उसका, तो कंपैरिजन कौन करता है? उसका नीति आयोग करता है। नीति है तो हमने डायरेक्ट मेंशन कर दिया, तो विल मेंशन नीति आयोग यहाँ पर, ठीक है। 1 पॉइंट आपका यहाँ पर ये आएगा। इसके बाद आप कुछ विजन दिखाना चाहते हो तो वो यहाँ पर भी दिखा सकते हो, लाइक मेक इन इंडिया एंड विकसित भारत 2047 भी दिखा सकते हो यहाँ पर, लेकिन वो कंक्लूजन के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक। देन यू हैव गिवन एनहांस ट्रेड कंपटीनेस, आपने एज लॉजिस्टिक सेक्टर ग्रोथ ब्रिंग्स कॉल कंपटीनेस, ठीक है। चाइना, यूएसए और इंडिया का आपने वहां पर लॉजिस्टिक कॉस्ट मेंशन करके आपने वो ग्राफ दिखा दिया, इट्स वेरी गुड, ठीक है। देन आपने स्ट्रीमलाइन सप्लाई चेन का मेंशन किया है, फ्लो ऑफ द गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल गुड्स की बात की है, वो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, वो भी अच्छा है, ठीक है। अब सप्लाई चेन में जब बात करेंगे, सो विल गिव द एग्जांपल। जब आप गुड्स की बात करते हो तो किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ऑटोमोबाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, या फिर आप उसकी बात कर सकते हो अपना क्या बोलते हैं इसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ पर,
तो एक आपने टोयोटा का भी सुना होगा, टोयोटा का कर्नाटका के अंदर एक प्लांट बनाया अभी, सर। तो वो भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर करना है तो। बट आप अगर ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स लिखोगे तो भी चल जाएगा काम आपका, ठीक है। देन आपने कॉस्ट रिडक्शन एंड एफिशिएंसी की बात की, ऑप्टिमाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेयर हाउसिंग एज पर नीति आयोग 10% लॉजिस्टिक कॉस्ट में इंक्रीज 5.8%, ठीक है। आई पॉइंट ठीक लिख सकते हैं हम लोग। इसके अलावा आपने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया एनहांस्ड मार्केट की एक्सेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, सो ट्राई टू गिव एग्जांपल यहाँ पर। अगर आप जब भी आप मार्केट की बात करोगे तो आपको एग्जांपल मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग मार्केट की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिवनेस तो आपने मेंशन कर दिया है, तो आप जब जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, जैसे 22 मिलियन आपने वहां पर मेंशन कर दिया है, तो आपको यहाँ पर बेसिकली जो मेंशन करना है वो डाटा, एक तो सोर्स मेंशन करना है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर आप सोर्स मेंशन करोगे, दूसरा यहीं पर आप क्या करोगे, थोड़ा सा आप चीजों को लाइक इसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी करोगे इनको, ठीक है। अगर मैं इसमें एक पॉइंट मेंशन करूं, जीवीसी का, बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स की बात करूं, तो वो क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम यहाँ पर? लिख सकते हैं सर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि उसमें वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हमारा 23 में निकला है, उसके रेफरेंस से हम लोग लिख सकते हैं, सर। ठीक है। तो जीवीसी, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जीवीसी और बूस्टिंग 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 एक्सपोर्ट्स एंड जीवीसी, ठीक है। इसमें अपना जो पॉइंट मेंशन करेंगे वो करेंगे लॉजिस्टिक वाला, ठीक है, जिसमें हम लोग वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है। मतलब एलपीआई 2023 की बात करेंगे भाई, ठीक है। एक पॉइंट ये मेंशन करेंगे जिसमें हमारा मतलब आप रैंक भी दिखा सकते हो, अगर याद हो तो, नहीं है तो फिर वो छोड़ दीजिए, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर जब जॉब क्रिएशन की बात करोगे तो एमएसएमई की बात कर सकते हैं हम लोग, एमएसएमई ग्रोथ की बात कर सकते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मल्टी मॉडल पार्क की बात कर सकते हैं, ठीक है। एमएसएमई में मल्टी मॉडल पार्क्स, और अपना किसकी बात कर सकते हैं, कॉरिडोर्स की बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सर। तो इस टाइप के पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहाँ पर। फिर आपने इसको जो पॉइंट को मेंशन किया, वेरियस कंपोनेंट ऑफ द नेशनल पॉलिसी, ठीक है, आपने उसके कंपोनेंट मेंशन कर दिए, बट मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आपने नेशनल जो हमारा लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 है, आप 2 लाइन इसके बारे में भी बता दो भाई यहाँ पर, लाइक 8% ऑफ जीडीपी बाई 2030, जो हमारा लाइक एम है अभी, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एट 8% ऑफ जीडीपी इन 2030, ठीक है। एक पॉइंट ये सर। मेंशन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें जो मेंशन कर सकते हैं, आप पीएम गति शक्ति का नाम ले सकते हो डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, ठीक है। 2 पॉइंट मेंशन कर दोगे, देन यू स्टार्ट योर आंसर यहाँ पर। लाइक आपने जो इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम की बात की है, डिफरेंट सिस्टम फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट टू बी इंटीग्रेटेड, आपने मेंशन किया है, तो इसमें आप 30+ सिस्टम्स की बात कर सकते हो, मिनिस्ट्री लॉजिस्टिक प्लेयर्स की यहाँ पर, ठीक है। ये तो आप अपने ऑफिस में भी यूज करते हो ना, सर। हाँ, तो उसके अंदर भी आपका यूज होता है मोस्ट ऑफ, तो ये तो आप सब लोग यूज ही कर रहे हैं। देन फिर आपका यहाँ पर यूनिफाइड आपका, ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट में कोई कमी नहीं निकालूंगा, वो वाला पॉइंट अच्छा है। देन ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज में ई लॉग्स की बात करेंगे, रोज गवर्न ग्रीवेंसेस डायरेक्टली विद द एजेंसीज, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, या इसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, इसको ऑपरेशन वगैरह भी यूज करते हैं। सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप की बात करेंगे तो आपने पॉजिटिव इसका लिख दिया यहाँ पर। देन यू हैव गिवन वे फॉरवर्ड, ये अपना गेट ई लॉग्स की बात कर दी। देखो, एक तो रिपीटेड पॉइंट मत लिखो, जब ऑलरेडी इससे पहले पॉइंट में ही मेंशन किया है मैंने, सर। ठीक है, तो रिपीटेड पॉइंट आपका नहीं होना चाहिए। देन स्मार्ट वेयर हाउसिंग विद आईओटी, ठीक है, ग्रेटर स्टैंडर्डाइजेशन टू इंप्रूव इंटरऑपरेबिलिटी, ये ठीक है पॉइंट। अब मैं इसमें कुछ कमिटीज के नाम मेंशन करना चाहूंगा। वे फॉरवर्ड जब लिखोगे तो विल ट्राई टू गिव 2 and 1 कमिटी इन योर आंसर, 2 and 1 केस स्टडी इन योर आंसर, ये आपको चीज मेंशन करनी है, ठीक है। सर। जैसे अब मैं कमेटी का नाम यहाँ पर मेंशन करूँ तो बाबा कल्याणी आपने कमेटी पढ़ी, सर। बाबा कल्याणी कमेटी 2018 में आई थी भैया। क्या किया था इन्होंने? ऑन सोशो इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर आई थी ये। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर, SEZ ना। हाँ सॉरी, सोशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर आई थी, उसमें हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात की गई थी, जिसमें बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात, सर। तो विल मेंशन दिस पॉइंट यहाँ पर। फिर एक पॉइंट मैंने बताया इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का आपका,
तो जर्मनी का नाम लिख सकते हो यहाँ पर, एक इंडस्ट्री 4.0 आ गया वहां पर, ठीक है। और एक सिंगापुर का नाम ले बोल सकते हो यहाँ पर आप, वहां पर पोर्ट मैनेजमेंट आ गया है, सिंगापुर में पोर्ट मैनेजमेंट। ये दो केस स्टडी आप अपना मेंशन कर सकते हो इस पार्ट के अंदर, ठीक है। फिर आपने इसका कंक्लूड किया है, इट इज हाईली पोटेंशियल बाय द पीएम, लाइक दैट लॉजिस्टिक इज मोर देन जस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड अबाउट मूविंग नेशनल फॉरवर्ड, ठीक है। विजन आपने मेंशन किया 2047, ब्रिंग इंडिया क्लोजर टू द, ठीक है, ये पॉइंट मैं मान सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा इसको आप विजन की जगह विकसित भारत एट 2047 मेंशन करोगे तो अच्छा लगेगा। या इसको फिर आप कैसे कर सकते हो, गोल्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत एंड विकसित भारत एट 2047, ये लाइन लिखो लास्ट में, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा पता लगेगा इसके अंदर, ठीक है। ठीक है। चलो अब अपना कोर थीम पे आते हैं, कैसे एक डायग्राम बनेगा इसके अंदर, ठीक है। तो डायग्राम, क्योंकि मैं इसलिए बनवा रहा हूँ डायग्राम, इससे थोड़ा सा आपका क्वेश्चन अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। सर तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या होगा यहाँ पर, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। ये इसने यहां से गया लो कॉस्ट, मैंने आपको बताया कि लॉजिस्टिक का कॉस्ट घट कितना होगा, 8% ऑफ जीडीपी। हमने अभी देखा था ना ऊपर कि कौन से ईयर बाय में होगा, 2030। 2030 में हो जाएगा, ठीक है। सर मैं देखो वही डाटा यूज करूंगा जो आपने ऑलरेडी बना रखा है, उसी डाटा को हम सर लोग यूज करें, ठीक है। देन जब लो कॉस्ट हो गया, 8% ऑफ जीडीपी आ गया 2030 में, इसको मेंशन 2030 भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो हाई क्या रहेगा यहाँ पर, कंपटीशन रहेगा, हाई कॉम्पिटिटिवनेस। उससे क्या होगा, इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग और एफडीआई ग्रोथ। समझ में आ रहा है, यस बढ़िया। अब देखो एक और बना देते हैं इसी में भी, एक और बना लेते हैं थोड़ा सा अभी, ठीक है। अब ये पता नहीं है कहीं का कॉपी पेस्टेड है, सर। ठीक है। वो मेरा था, ये कॉपी पेस्टेड आएगा, ठीक है। वही मैं बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स की बात करोगे, ठीक है। जब आप, सॉरी, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स तो मेरा हो गया ना। यहाँ पर मैं बात करूंगा इकोसिस्टम की बेसिकली, ठीक है। और एक्सपोर्ट की बात करूंगा। आप एक डायग्राम बना सकते हो ऐसा करके, सर ठीक है। ये आपका इकोसिस्टम है, ये आपका एक्सपोर्ट है, ठीक है। और जो बीच में आएगा ये कॉमन पार्ट, ये क्या आएगा यहाँ पर, ट्रेड बूस्ट आएगा, ट्रेड बूस्ट। ये जो हम बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं, टैक्स इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरा जो टॉपिक है ये है टैक्स इंसेंटिव्स, ठीक है। एक एक्सपोर्ट हो गया, एक इकोसिस्टम हो गया, और बीच में क्या आ गया, ट्रेड बूस्ट आ गया। लेकिन किसके रेफरेंस में, टैक्स के रेफरेंस में है। बेसिकली सर हम लोग जो ये बना रहे हैं ये एनपीएल के उसमें बना रहे हैं, ठीक है। एनपीएल का जो हमारा कोर थीम है उसके रेफरेंस में बना रहे हैं इसको। इसके बेसिस पे क्या आएगा यहाँ पर, फिर से दो चीज आएंगी, यहाँ पर फिर से मैं दो चीज बना रहा हूँ। अब ये क्या बना रहा हूँ मैं, इंफ्रा हब बना रहा हूँ। एक क्या है भाई यहाँ पर इंफ्रा हब के साथ में, एक तो आपका लॉजिस्टिक एफिशिएंसी आ जाएगी, और जो एक कॉमन पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये कॉमन पॉइंट आएगा, ये क्या आएगा, स्पैटियल सिनर्जी, स्पैटियल सिनर्जी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इन तीनों से क्या मिलेगा यहाँ पर, इन तीनों से कॉम्पिटिटिव कॉरिडोर कैपिटलिज्म, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा लेकिन यूनिक बनेगा। जनरली वो वाले पॉइंट्स आपके मैंने कंटेंट से उठा के दिखाए कि कंटेंट में से कैसे पॉइंट उठा के आप डायग्राम में कन्वर्ट करोगे। ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे से थोड़ा लास्ट वाला यूनिक पॉइंट बनेगा। सर क्या था? ये है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव कॉरिडोर कैपिटलिज्म। सर आ रहा है कुछ अभी समझ में भाई?
सर वैल्यू एडिशन अच्छा है सर। बस नेक्स्ट टाइम से बस अभी ऐसे आंसर लिखने हैं अपने को, इसको है सर ना? आंसर करेंगे इंक्लूड इसको आगे से। हाँ। और ये हमारा रात को, इतनी रात को सेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़े ही अच्छे ढंग से हम लोग रात को डिस्कशन कर सकते हैं, और आप मेरे फ्यूचर रैंकर हो, तो सर इसलिए वो टाइम देखने के चांसेस नहीं होते हैं, टाइम नहीं देखा जाता वहां पर। जहां पर सेशन होना है वो रात को 12-1 बजे भी होगा, 2 बजे भी होगा, ठीक है। सर लेकिन अपने को ट्राई यही करना है कि हम लोग उस चीज से कुछ सीखे, एंड देन सीख के हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करें इन द नेक्स्ट टेस्ट पेपर, ठीक है। सर तो ऐसे क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बना बना के देता रहूंगा आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने काफी लोगों से इसको टैकल कराने की कोशिश की है, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत कम लोग कवर कर पाए हैं, सर ठीक है। लेकिन आपने इसको बखूबी निभाया, इस क्वेश्चन को काफी अच्छा आपने लिखा है इस आंसर को, ठीक है। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड evaluating the prospectus of developing salt cavern based strategic oil reserves to increase India's strategic oil reserves in order to strengthen India's energy security and its capacity to mitigate supply disruptions in global market। 150 words में इसको आपने मेंशन किया, ठीक है। So first of all, India, third largest energy consumer country of the world, as per India's Energy Outlook report. बढ़िया भाई, India import 85% of crude oil, where salt given based strategic oil reserves become imperative. It's very good. अब यहाँ पर जब आपने क्रूड ऑयल का मेंशन किया है ना, तभी मैं समझ गया था कि क्वेश्चन का अच्छा लेवल बनने वाला है। लेकिन जब आप इस क्रूड ऑयल मेंशन किया, तो इसके ब्रैकेट में आप 2025 मेंशन करना है यहाँ पर, क्योंकि इट्स अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, सर ठीक है। और ये डाटा अभी का है, तो इसको आप 2025 जरूर मेंशन करना जब क्रूड ऑयल मेंशन करोगे, तो वहां पर एक मेजर इशू, मैं इसको करंट अफेयर के सिनेरियो से स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पर रशिया और यूक्रेन वॉर का भी एक एग्जांपल लेके स्टार्ट कर सकता हूँ, उसके कॉन्फ्लिक्ट को लेके भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ कि भाई उसकी जैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, देन टेंशन इन द मिडिल ईस्ट, देन फिर एक ये सप्लाई स्टेबिलिटी के ऊपर एक सीरियस रिस्क हुआ। तो हम लोगों ने उसको काउंटर करने के लिए आपने एक चीज आगे यूज भी कर रखी है, एसपीआर वहां पर, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की हम बात करेंगे, तो हमने आगे भी यूज कर रखा है। लेकिन अगर वो एक पॉइंट और इसमें ऐड ऑन हो जाता लास्ट में, जो आपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की बात किया है, तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम यहाँ पर अपने करके और रिजर्व की बात कर देते हैं, एसपीआर। ये जो आपने स्ट्रेटेजिक ऑयल का रखा है ना, इसको पेट्रोलियम रिजर्व करके कर देते हैं और एसपीआर लिखते हैं इसको ब्रैकेट में, तो और भी अच्छा लगता है, ठीक है। देन आपने उसके बारे में लिखा है, इट लाइज नेचुरली फॉर्म्ड अंडरग्राउंड कैविटी, ठीक है, कैविटी क्रिएटेड थ्रू सॉल्यूशन माइनिंग, ठीक है। आपने उसको मेंशन कर दिया, बट आई थिंक उसका इतना ज्यादा नीड नहीं था, लेकिन आपने उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। देन आपने यहाँ पर साल्ट कैवर्न बेस्ड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की टू स्ट्रेंथन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी की बात किया। नेचुरली आपने उसको मेंशन किया है, ये सील लिखा है, नेचुरली सील लिखा है नेचुरली वाला, सील्ड है सर। ठीक है। The nature of the salt provides excellent natural sealing for the stored oil. बढ़िया एग्जांपल, इट्स वेरी गुड। देन कॉस्ट इफेक्टिव आपने मेंशन किया, ठीक है, वो पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, चीपर इन रॉक के उनके रैपिड इंजेक्शन एक्सट्रैक्शन की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और वैलिडेशन पॉइंट देना चाहूंगा। एक तो इसमें सबसे पहले आप क्या पॉइंट मेंशन कर सकते हो यहाँ पर नेचुरल सीड के बाद में, कि स्टेबलाइजिंग डोमेस्टिक प्राइजेस, डोमेस्टिक प्राइजेस, ठीक है। आप एग्जांपल दे सकते हो इंडिया एंड यूएसए का, जो कि स्ट्रेटेजिक रीजंस ऑफ ईज ऑफ ग्लोबल प्राइसेस के ऊपर बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेबलाइजिंग डोमेस्टिक प्राइसेस डोमेस्टिक की बात कर प्राइसेस। सकते हैं, ठीक है। एक इसमें एक पॉइंट और, एनर्जी ट्रांजिशन कुशन, ठीक है। मतलब ट्रांजेक्शन सेफगार्ड की बात कर रहे हैं वो वहां पर, सही। ठीक है। एक पॉइंट यहाँ मेंशन कर सकते हो। सो विल गिव 4 to 5 पॉइंट्स, जब भी आप कोई पॉइंट को स्टार्ट करोगे विल गिव 4 to 5 पॉइंट्स वहां, ठीक है। ये रैपिड इंजेक्शन वाला ठीक था, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, तो अपने इमरजेंसी रिस्पॉन्स में, तो यू विल ट्राई टू गिव एग्जांपल्स। यहाँ पर आप जब भी कोई चीज को यूज करोगे तो आपको एग्जांपल्स यूज करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर कैपेसिटी टू मिटिगेट सप्लाई डिस्ट्रप्शन ऑफ द ग्लोबल मार्केट आपने लिया, साल्ट कार्बन का लाइक प्रोवाइड्स स्पीयर प्रोवाइड्स फ्यूजन ड्यूरिंग जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर, ठीक है।
अब देखो जियो पॉलिटिकल आपने लिखा है, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर का आपने एग्जांपल दे दिया, देन आईईए का आपने मेंशन किया है, बिल्डिंग रिजर्व साल्ट केबिन कंपोनेंट रॉक केबिन की बात किया है आपने, वो भी मेंशन कर दिया यहाँ पर 90 डेज ऑफ द स्टॉक का, फिर ओवरकम की बात कर दी है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़े से पॉइंट्स को यहाँ पर और भी अच्छे से, इट्स अ 50 मार्क का क्वेश्चन। 10 मार्क का था। कितने मार्क का क्वेश्चन था ये? 10 मार्कर से। 10 का ही था, 10 का था ना। तो थोड़ा सा जब कैपेसिटी हम लोग ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इसका एग्जाम्पल फॉर्मेट बनाओ यहाँ पर, सर। ठीक है। थोड़ा सा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब आपके पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अपना विशाखापट्टनम का एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें 1.33 एमएमटी की बात करी हमने, सर। ठीक है। मैंगलोर की बात कर सकते हैं जिसमें हमारा 1.5 एमएमटी की बात करेंगे हम लोग वहां पर। देन यहाँ पर पाडूर की बात कर सकते हैं जिसमें हमने 2.5 एमएमटी की बात की है। विशाखापट्टनम, उसके बाद में मैंगलोर और पाडूर, ये 3 लोकेशन आप दिखा दो, और फिर 9 to 10 डेज वाला जो आपने डिमांड कर रखा है ऑयल का, वो आप मेंशन कर दोगे, चल जाएगा। इंडिया सर। कॉन्टेक्स्ट में आप इतना ही लिखोगे तो चल जाएगा। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो भाई ट्रिपल पी लिख दो वहां पर। अभी ट्रिपल पी में क्या हुआ, अबू धाबी ऑयल कंपनी ने क्या किया था वहां पर, एग्जाम्पल वो लिख सकते हैं हम लोग आराम यहाँ, को बोला जो सर। ठीक है ना, सऊदी स्टोरेज वगैरह अरेबिया के का बारे आराम को में। सर। हाँ, तो ये आप अपना एक ट्रिपल पी का भी एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है भाई। ठीक है सर। चैलेंजेस फिर आपने मेंशन किए यहाँ पर, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्टीज, ठीक है। और फिर जब भी आप कोई चैलेंज दोगे तो विल गिव द वे फॉरवर्ड ऑल्सो साइड में। सर। वे फॉरवर्ड में सबसे पहले हाइब्रिड स्टोरेज मॉडल लिख सकते हैं इसमें, स्टोरेज मॉडल, हाइब्रिड स्टोरेज मॉडल, ठीक है, लाइक सॉल्ट कार्बन और रॉक कार्बन की बात कर सकते हैं हम लोग, केवरन की बात कर सकते हैं। देन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर सकते हैं कैसे, ओपेक प्लस कंट्रीज की बात कर सकते हैं इसमें एग्जांपल, ओपेक प्लस कंट्रीज की बात करेंगे, या सर। नेशंस, ओपेक प्लस नेशंस की बात करेंगे, ठीक है। सो 2 से 3 पॉइंट आप लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट आपने हाइब्रिड का लिख दिया, फिर अपने सेकंड पॉइंट लिखा यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की बात की जिसमें हमने ओपेक प्लस का नाम लिख दिया, और एक पॉइंट और दे सकते हो, डिजिटल मॉनिटरिंग की बात कर सकते हैं यहाँ पर, सर। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड डिजिटल मॉनिटरिंग की बात कर सकते हैं। उसमें आप नेशनल एनर्जी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर सकते हो, नीम्स, NEDMS, ये है हमारा यहाँ पर फॉर रियल टाइम मैनेजमेंट के लिए, NEDMS, नेशनल एनर्जी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, सर। ये आप बात कर सकते हो इसमें, ठीक है। इतना लिखोगे, अगर आगे और भी करना है एनर्जी सोर्सेज के लिए जाओगे तो बायोफ्यूल्स है, ग्रीन हाइड्रोजन है, रिन्यूएबल एनर्जीज है, उनका भी लिख सकते हो यहाँ पर आप, अगर रेफरेंस देना चाहते हो तो उनका भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। सर। इसके बाद आपने कंक्लूड किया है, कंक्लूड आपने सस्टेनेबल प्लस सिक्योर प्लस स्टेबल एनर्जी सप्लाई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। इसको एक थोड़ा सा यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट और ऐड कर दो, एनर्जी सिक्योर एंड स्ट्रेटेजिकली एम्पावर्ड नेशन, एनर्जी सिक्योर एंड स्ट्रेटेजिकली एम्पावर्ड नेशन, ये एक पॉइंट याद कर दो, क्योंकि एनर्जी डिपेंडेंट इकोनॉमी है हमारी, एनर्जी डिपेंडेंट सर। इकोनॉमी इनटू एन एनर्जी सिक्योर, एनर्जी सिक्योर एंड वहां पर स्ट्रेटेजिकली डेवलपमेंट नेशन, एम्पावरमेंट नेशन, ये पॉइंट एक मेंशन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। इस ठीक पॉइंट है को अपना मेंशन करोगे तो ये बेस्ट पॉइंट रहेगा। फिर से एक सर। इसमें देख लेते हैं, कुछ डायग्राम वायग्राम बना सकते हैं, तो एक बार वो भी देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। सर 10 वाले में भी डायग्राम बनाना है कि 15 वाले में से? बना दो यार, 10 वाले में भी छोटे छोटे डायग्राम बना सकते हैं। अब देखो मैं क्वेश्चन से ही यूज करना सिखाऊंगा आपको, सप्लाई चेन वाले से ही, सर। 1, फिर उसमें प्लस में 2, फिर जाएगा तीसरा, और उससे माइनस जाएगा ये वाला, ठीक है। देखो सबसे पहले ग्लोबल सप्लाई, अब इसमें क्या लिख सकते हैं, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन, ठीक है, लिख सकते हैं। इसके साथ में क्या जुड़ेगा, SPR, अभी हमने पढ़ा, SPR सर। रिलीज, ठीक है। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं भाई, ये जा रहे हैं भाई डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट स्टेबलाइजेशन, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट स्टेबलाइजेशन में से क्या माइनस करूंगा, टाइम टू डाइवर्सिफाई इंपोर्ट्स,
डाइवर्सिफाई, तभी ये हो पाएगा, ठीक है ना। टाइम टू ठीक है सर। डाइवर्सिफाई इंपोर्ट्स, तब हम लोग इसको कवर कर पाएंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। अगर एक साल्ट कार्विन का ही इसका कैवरिन का ही बनाना है तो वो कैसा बनाएंगे, उसका भी एक देख लेते हैं। उसका तो मतलब छोटा सा ही है, इसी पॉइंट से बनेगा। वन प्लस इसके बाद में ये, और इसके बाद में लास्ट वाला ये, चार ही बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले साल्ट कैवरिन स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें लो कॉस्ट फास्टर बिल्ड, ये इसका मोटो है, लो कॉस्ट फास्टर बिल्ड। फिर फिजिकल स्टॉक पाइल सिक्योरिटी बफर, सिक्योरिटी बफर, फिजिकल स्टॉक पाइल सिक्योरिटी बफर, ठीक है। इसी के अंदर फिर आपका जो ये जाएगा वो कहाँ जाएगा, मिटिगेट प्राइस, लाइक मिटिगेट प्राइस सप्लाई शॉक्स। एक मिनट, मिटिगेट प्राइस सप्लाई, ये सेव हो रहा है मेरा, एक मिनट रुको, पीडीएफ सेव हो रहा है, सप्लाई अच्छा, शॉक्स, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी नेशनल रीसाइलेंस, एनर्जी सिक्योरिटी नेशनल रीसाइलेंस, ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है भाई। सर। एक कोड देखते हैं क्वेश्चन आपका। सो इंडियन ईवी इंडस्ट्री इज द critically dependent on semi conductors कनेक्ट। for its sustainability. What are the challenges that Indian semiconductor industry faces? Analyze and suggest measures to strengthen the supply chain of semiconductors in India. 2050 वर्ड्स में लिखना है, 250 वर्ड्स में लिखना है। सो ऑलरेडी वी हैव वी हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉर द ईवीज, है ना। और सर। सेमीकंडक्टर का भी तो हमारे पास में काफी सारे एग्जांपल, दुनिया भर से काफी एग्जांपल आ रखे हैं, तो वो हम लिख सकते हैं। तो यू स्टडी विद द इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट, आपने लिखा है यूएस 38 बिलियन का, एक्सपेक्टेड 100 बिलियन बाय 2030, ठीक है। छोटा है, अच्छा है, सबसे बढ़िया है, ठीक है। अगर मैं सेमीकंडक्टर्स का डेफिनेशन भी दे सकता था यहाँ पर, लेकिन आपने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया, वो भी बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ने स्टार्ट किया, फिर इंडिया ईवी इंडस्ट्री आपने डिपेंडेंट ऑन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स आर प्लेइंग मॉडर्न ईवी, इन्फ्लुएंसिंग बैटरी मैनेजमेंट, लाइफ स्पैन ऑफ द लिथियम ऑन बैटरी, रोल इन द डिजिटलाइजेशन ऑफ द ईवी। इट्स वेरी गुड, मतलब ये एक्सीलेंट है, ये आपको बढ़िया मार्क्स देके जाएगा यहाँ पर, ये सर। मतलब स्टार मार्क कर रहा हूँ, बढ़िया है ये पूरा, ये आपको अच्छा मार्क्स देके जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन यू हैव गिवन चैलेंजेस ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ठीक है, आपने लिखा। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर डिपेंडेंट ऑफ सेमीकंडक्टर लिखा, तो दे हैव गिवन क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑफ द सेमीकंडक्टर, फिर चैलेंजेस आपने मेंशन किया। तो आपने जब उसका डिपेंडेंट सेमीकंडक्टर का दिखाया, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इन इंडिया, सो देयर आर सम basic information. So I'll give two सर। and three points based on the importance of semiconductors in EV industry. ठीक है, हालांकि वो इंडियन इंडस्ट्री डिपेंडेंट ऑन सेमीकंडक्टर, यही पॉइंट्स हैं जो आपने मेंशन किया है, बट विल ट्राई टू गिव सम एग्जांपल्स यहाँ। मैं एग्जांपल्स सर। की बात करूंगा। जैसे आपने रोल ऑफ यहाँ पर डिजिटाइजेशन की बात किया, लाइफ स्पैन की बात किया, लिथियम बैटरीज एग्जांपल, फिर डिजिटाइजेशन की बात किया आपने, वो एक एग्जांपल है। टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा मोटर्स की बात कर सकते हैं। देन इन्फ्लुएंसिंग बैटरी मैनेजमेंट किया गया, तो लिथियम का बात किया आपने, एक वो सिलिकॉन कार्बाइड की बात की है जहां पर हमने, ठीक है, कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड की बात की है, ठीक है। जो चिप्स लाइक इंप्रूव पावर कन्वर्जेशन की बात करते हैं, जिससे पावर कन्वर्ट होती है ना, उस टाइप से। तो इस टाइप के एनर्जी ट्रांसमिशन की बात कर सकते हैं, इस टाइप के पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सर। देन द चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन चैलेंजेस एट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन वर्ल्ड, 515,000 कॉम्प्लेक्स स्टेप्स, ठीक है। बट यू विल ट्राई टू गिव सम एग्जांपल यहाँ पर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एक कुछ एग्जांपल दे दो, वो भी बेस्ट रहेगा, इनोवेशन की बात करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हो कि भाई वो लैक ऑफ फैब्रिकेशन की बात कर सकते हो, फैब्रिकेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ फैब्रिकेशन फैसिलिटीज। उसमें आप किसकी बात कर सकते हो, ताइवान की बात कर सकते हो, TSMC, और साउथ कोरिया की बात कर सकते हो, जिसमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर सकते हैं। एक साउथ कोरिया का याद कर लो, साउथ कोरिया, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये पॉइंट आप इसमें मेंशन कर सकते हो अपना भाई। देन यहाँ पर आपने फिर उसके बाद में हाई इनफ्रंट कॉस्ट का आपने मेंशन किया है,
वो पार्ट भी ठीक है आपका। आपने मैथ्यू वाला के दिया 5 to 7 बिलियन वाला। स्किल्ड वर्कफोर्स की बात की है, इंडिया करंटली एम्प्लॉयज अबाउट 2,20,000 सेमीकंडक्टर्स प्रोफेशनल्स, आपने उसकी बात की है, वो भी पॉइंट ठीक है। ग्लोबल कंपटीशन की बात किया है, ताइवान साउथ कोरिया, ठीक है। और इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी चैलेंज की बात की है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यूजेस हैजार्डियस केमिकल्स, ठीक है। ये पॉइंट ठीक है। इसमें अगर कुछ और चीज मेंशन करना है तो आप ग्लोबल कंपटीशन मार्केट वोलेटिलिटी की बात कर सकते हो। ग्लोबल जब आपने कंपटीशन का नाम दिया है तो आपने ताइवान साउथ कोरिया का दिया है, लेकिन इसमें आप यूएस का भी एक रेफरेंस दे सकते हो यहाँ पर। यूएस चिप्स आपने सुना होगा, एक्ट 2022 का, चिप्स एक्ट ठीक है। चिप। हाँ, चिप्स एक्ट 2022, ठीक है, ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो। पॉलिसीज डिलेज, कोऑर्डिनेशन इश्यूज, ये सब पॉइंट्स, ये बेसिक पॉइंट्स, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पॉलिसी डिलेज प्लस में कोऑर्डिनेशन इश्यूज। कोऑर्डिनेशन इश्यूज, ठीक है। Then measures to strengthen supply chain semiconductor in India in centralize the investment through the schemes like production link scheme PIL, इसको ब्रैकेट में PIL भी लिख देना यहाँ पर, ठीक है। PLI स्कीम्स और डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव की बात कर सकते हैं, आपने वो मेंशन किया यहाँ पर। इसके बाद में आप एक इसके साथ में आपने DLI स्कीम मेंशन कर दिया, ये अच्छा है, आउटले DLI स्कीम, ठीक है। डिजाइन लिंक्ड अपना इंसेंटिव, ठीक है। ये ट्रिपल पी का आपने मेंशन किया है, इंकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन फर्म्स एंड ग्लोबल प्लेयर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान का, धोलेरा, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। यू हैव गिवन इंफॉर्मेशन द लास्ट क्वेश्चन, सर ठीक है। एक और एग्जांपल दिया था, दो दिए थे मैंने वहां पर, एक धोलेरे का दिया था और एक कौन सा दिया था बताओ मेरे को। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सर, धोलेरा और हाँ कृष्णपट्टनम। हाँ, कृष्णपट्टनम इन केरला, ठीक है। तो ये हम लोगों को दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, वो आप एग्जाम्पल यहाँ पर दे रही है, आपने काफी अच्छा लिखा। फिर यहाँ पर आपने सप्लाई चेन का मेंशन कर दिया है, ठीक है। सिक्योर वाला, इंडिया एज ऑस्ट्रेलिया एज अर्जेंटीना का मेंशन किया है, ठीक है भाई। डेवलपिंग रीजनल क्लस्टर्स की बात कर दी आपने, ये बढ़िया लिखा आपने। सो देर आर सम इंटरनेशनल कोलेब्रेशंस, वो क्या लिख सकते हैं हम लोग। यू हैव ऑलरेडी गिवन वन एग्रीमेंट, अपने इसलिए अर्जेंटीना और चिली का मेंशन किया, बट एक एमओयू हमने साइन कर रखा है जापान, ताइवान एंड यूएई के साथ में। जापान, ताइवान यूएई। ताइवान एंड यूएई, ठीक है। ईयू, यूरोपियन यूनियन, सॉरी, यूएई नहीं, यूरोपियन यूनियन भाई, ठीक है। और इसमें एक और एग्जांपल, इंडिया यूएस इनिशिएटिव, जो इंडिया का और यूएस का इनिशिएटिव है, ठीक है। वो क्या है, ICET, ठीक है। इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड क्रिटिकल। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन सर 2023 दे हैव गिवन, ठीक है। सो यू हैव गिवन R&D, टैलेंट डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स इन लाइक 2.0 एंड लेटिंग इंडिया, इंडिया स्टेटस, बढ़िया। अब इसमें आपने जो डायग्राम बनाया है वो अच्छा डायग्राम है यहाँ पर। तो यू हैव गिवन इन टू क्वेश्चंस, यू हैव ऑलरेडी गिवन द डायग्राम, और ये एक फॉर्मूला जो आपने बनाया ये काफी अच्छा है, ठीक है। ये देख के मेरे को होता है कि हाँ भाई कुछ हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पर, यस ठीक सर, है। बहुत देन सारे इंडिया, पॉइंट सर आप जो बताए हैं पिछले क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं हाँ, इसमें से। नहीं नहीं बढ़िया यार। इंडिया हैज पोटेंशियल टू द ग्लोबल डिमांड ऑफ सेमीकंडक्टर, बट रिक्वेस्ट इंडस्ट्री गवर्नमेंट लाइक, इसको थोड़ा यार रिफॉर्म करेंगे हम लोग। ये थोड़ा बेसिक वाला हो गया, लाइक लिख दो ना, रिसेलेंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेंज, एक एक ये पॉइंट लिख सकते हो। सेमीकॉन इंडिया की बात कर सकते हो, सेमीकॉन इंडिया मिशन, ठीक है। सेमीकॉन इंडिया मिशन की बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और ईवी ग्रोथ के लिए बात है तो भाई टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी एंड सस्टेनेबल ईवी ग्रोथ इन द कमिंग डिकेड, ये लिख दो कि भाई, लिख दो इसमें टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी एंड, टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी एंड ईवी ग्रोथ, सस्टेनेबल ईवी ग्रोथ इन द कमिंग डिकेड, ये पॉइंट लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो एक ये वाला पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो अपना भाई यहाँ पर। अब सर आपने तो एक फॉर्मूला बना दिया है इसका कि भाई हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैं भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है। इसमें क्या आंसर यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी यू हैव गिवन वेरी डिसेंट फॉर्मूला, बट आई हैव गिवन रिगार्डिंग फॉर द ईवी वर्नेबिलिटी का दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। सर 2 3 4, और उसके बाद में एक यहाँ पर 5, ठीक है, 5 बनेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई यहाँ पर, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी,
ठीक है, फिर क्या हो गया इंपोर्ट डिपेंडेंसी के बाद में? ग्लोबल चिप स्टोरेज, इंपोर्ट डिपेंडेंसी, देन ग्लोबल चिप स्टोरेज यहां पर मेंशन आएगा। देन ईवी प्रोडक्शन डिलेज, फिर ईवी प्रोडक्शन डिले हो गया जिसकी वजह से हायर ईवी कॉस्ट, ठीक है, जिसकी वजह से स्लो ईवी एडप्टेशन, लोग बहुत अडोप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो एक ये डायग्राम भी बन सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके कुछ टॉपिक्स थे, 5 क्वेश्चन यू ऑलरेडी गिवन, एंड उसके बेसिस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई थिंक यू हैव गिवन वेरी गुड पॉइंट्स, और अगर ऐसे ऐसे लिखते रहोगे तो भाई अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं हम लोगों को जीएस पेपर 3 में, काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और आप जीएस 2 का भी आपने काफी अच्छा आंसर लिखा हुआ है, तो उसमें भी नो डाउट वो भी काफी अच्छे आंसर आपने लिखे हुए हैं, तो मुझे उसमें भी बस कोई इशू नहीं। जीएस3 का सर यही आपसे पहले हम बताए थे कि टारगेट है कि हर क्वेश्चन में सर 1 नंबर, क्योंकि 24 वाले मेंस में सर 90 नंबर दिया था जीएस3 में। तो इस बार टारगेट है कि कम से कम हर क्वेश्चन 1 नंबर बढ़ेगा सर। तो नहीं नहीं यार, दोबारा इस बार मेंस लिखेंगे और इसको काफी डेप्थ में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है। जो हमने अभी सीखी है चीजें यहाँ पर, उनको हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में अपना लाइक इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड विल ट्राई कि मोस्ट प्रोबली जो चीजें हम लोग सीख रहे हैं, थोड़े पॉइंट भी आपके काफी क्रक्स टू द पॉइंट आप आंसर दे रहे हो, एंड टू द पॉइंट आपके पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। ऑल्सो यू हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जांपल्स, बट कुछ कुछ जैसे एग्जांपल की जगह पे जो पॉइंट में लिखना होता है वो हमने एग्जांपल में लिख दिया, तो वो हम लोग अपना पॉइंट्स सर में ही लिख के और एग्जाम्पल को अलग से लिखेंगे, ठीक है, उस टाइप का इंफॉर्मेशन देंगे। बट आई लाइक आपने काफी अच्छे से उसको लिखा हुआ है, और मुझे लगता है कि ऐसे लिखोगे तो रैंक तो आना पक्का ही है, ठीक है, सर, तो उसमें कोई इशू जो नहीं जो है। लास्ट सेशन में सर आपने बताया था उसको इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे मेरा पहले था कि पॉइंट्स लिख देते थे और सीधे एग्जाम्पल लिखते थे। अपने जो हम्म। पॉइंट बोला है कि पॉइंट के साथ कीवर्ड्स के साथ एक्सप्लेन करो थोड़ा सा फिर लिखो, तो उसे इसमें किए हैं वो। नहीं नहीं, बढ़िया 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 यार, बढ़िया है। और आप भाई जॉब के साथ में इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, इतनी अच्छे मेहनत कर रहे हो, सर और पूरा दिन, अभी तो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन की ड्यूटी चल रही है, तो उसके साथ साथ में रात को इतनी देर तक पढ़ना, 3 बजे तक पढ़ना, अभी 1 बज गया है, 1 बजे तक हमारा सेशन चल रहा है, तो इतनी सर देर तक पढ़ रहे हो, इतनी देर तक हम लोग आप अपनी मेहनत कर रहे हो, तो रिजल्ट तो आना पक्का है ना। सर तो इस साल अपना बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट लगाएंगे और रिजल्ट लेके आते हैं, सर और इसको करते हैं। पॉलिटी का नेक्स्ट मीटिंग में कर लूंगा, उसको पॉलिटी का नेक्स्ट मीटिंग में सर करूंगा, ठीक है। और ये काफी डेप्थ में डिस्कशन किया है मैंने, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल है उसको इम्प्रूव करने का, एंड मुझे इस पेपर में देख भी गया कि लास्ट पेपर में जो सिखाया वो आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, and उसको आपने यहाँ पर लाइक रिफॉर्म भी किया अपने आंसर्स को, तो इट्स वेरी सर गुड। और मुझे लगता है कि यार मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो मिलेगा ही, सर सर जरूर सर। ठीक है ना। सर और जिसकी धुरी कृष्ण जी ने पकड़ रखी है उसके बाद तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक सर है। तो वही है कि सब अच्छा होगा और अपना बेस्ट रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। सर तो ठीक है यार, अपना करते हैं इसको, ठीक है भाई। थैंक यू सर। ओके ओके। तो मेरा एक वो क्या बोलते हैं, ये मेरा ड्रीम है, तो अपने को ये फुलफिल करना है। ठीक है। सर सर जरूर सर, मेहनत मैंने करेंगे सर। मैंने इस पे अपना फोटो लगा के, कभी जब मैं प्रिपरेशन करता था इन 15 16 17 18, है ना, तो सर उस टाइम पे मैंने ये वॉलपेपर बनवाया था कि इफ आई गॉट 7 रैंक देन मुझे आईएएस मिल जाएगा, इफ आई गॉट 70 रैंक देन मुझे आईपीएस मिल जाएगा। तो सर उस टाइम से ही लगा हुआ है, अगर जिस दिन का 7 और 70 रैंक आएगा मेरे स्टूडेंट्स का, तब ये मेरा ड्रीम फुलफिल होगा। अभी रैंकर तो काफी सारे आ ही रहे हैं, लेकिन ये ड्रीम तब फुलफिल होगा जब मेरा कोर बच्चा 7 और 70 रैंक पर आएगा। सर सर हम लोग कोशिश करेंगे सर इस आपका ड्रीम बिल्कुल पूरा करना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है यार, इसको करते हैं, और जितना भी होगा अच्छे से ही सब चीजों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सर थैंक यू सर। ओके ओके भाई, ओके सुजीत, करो अपने अच्छे से तैयारी, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो मिलते हैं जल्दी, ठीक है। सर ओके ओके। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। सर इसमें भी एथिक्स वाले में सर तो 2 टॉपिक हो गया, एटीट्यूड का बचा हुआ है सर, वो मैं अभी कर रहा हूँ। बाकी 2 ह्यूमन वैल्यूज है तो उसको तो कर लिए थे।
ह्यूमन वैल्यूज एंड एसेंस ऑफ एथिक्स हो गया है। हाँ सर वो So सब हो गया। I'll give you 10 questions. Based on that topics, I'll give you 10 questions. सर, ठीक है, उन 10 अभी questions को एथिक्स complete वाला सर आप करेंगे। ही सेशन करा रहे हैं, कोई और करा रहा है? अभी आज किसी और ने कराया है, लेकिन I'll try कि I'll also give some sessions. बच्चों के काफी सारे मैसेज आ रखे हैं कि सिर्फ फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन आप ही किया करो, थोड़ा मोटिवेशन रहता है। तो I'll try कि tomorrow डे आफ्टर टुमारो I'll start सेशंस। और अभी मैं दिवाली की जो छुट्टी आएंगी तो उसमें मैं मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में ऐसे राइटिंग के सेशंस लगाऊंगा। तो ऐसे राइटिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बस टाइप से। ठीक है, ठीक है सर, चलो बहुत लेट हो ठीक गया है सर, सुजीत। आराम करें। ओके 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 सुजीत, ओके। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट भाई।